Good morning, friends. In today's lecture, we are going to cover with a last topic under free consent, that is a mistake. In the previous lectures, we have referred to coercion, undue influence, fraud, and misrepresentation. In all the four cases, we have seen that a contract is voidable at the option of the aggrieved party. That is, aggrieved party has a right either to avoid the contract or he can enforce the contract if the contract is of his own benefit. In today's topic, we are going to cover with mistake. So what is a mistake? Mistake यानी गलती हो गई. तो as far as Indian Contract Act is concerned, ये गलती आपको कहाँ लेके जाएंगी? गलती एक पार्टी से हुई है जो कॉन्ट्रैक्ट में है या फिर दोनों पार्टी से हुई है. कॉन्ट्रैक्ट इज रिलेटेड टू लॉ और अ कॉन्ट्रैक्ट इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो ये सब चीज़ आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर. रिफर टू योर स्क्रीन. व्हाट दे हैव गिवन. मिस्टेक इज नथिंग बट innocent or erroneous belief. What they have given? Innocent or erroneous a belief. Erroneous is nothing but an error. So mistake can be purposely you have made a mistake or there is any kind of an innocent mistake के mistake हो गया contract entered करते हुए. तो what will be the outcome? In the case of mistake, the contract will be valid, contract will be void, or contract will be voidable. In the earlier four cases, we have seen that कि coercion, undue influence, fraud और misrepresentation में contract जो है वो voidable है. लेकिन mistake के case में rule कुछ अलग है. With the help of this particular chart, we'll try to understand कि अगर मिस्टेक होता है और कौन से टाइप के मिस्टेक होता है तो कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम क्या होगा. वन बाय वन वी आर गोइंग टू रिफर दिस. नाउ हियर यू कैन सी दैट के मिस्टेक इज ऑफ टू टाइप. वन इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड अदर वन इज अ मिस्टेक ऑफ लॉ. मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैन बी, यू कैन कॉल इट एज के जिस चीज के लिए, जिस सब्जेक्ट मैटर के लिए आप अगर कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो, जिस पर्सन के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो और उसमें अगर कोई मिस्टेक होता है तो दैट इज कॉल्ड एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट. मिस्टेक ऑफ लॉ का मीनिंग है देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ. वन इज अ लॉ ऑफ लैंड इन विच यू आर लिविंग, यू कैन कॉल इट एज एन इंडियन लॉ, या फिर मिस्टेक एज रिगार्ड्स टू द फॉरेन लॉ. तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ, एंड व्हाट इज एन आउटकम ऑफ दिस पर्टिकुलर मिस्टेक दैट वी आर गोइंग टू सी. A mistake of fact has been further divided into unilateral mistake and a bilateral mistake. Mistake of fact is divided in unilateral mistake and a bilateral mistake. The meaning of unilateral and bilateral has been already covered under unit 1. Unilateral का meaning क्या है कि एक particular person का mistake, यानी अगर दो parties है उसमें से एक party is under the mistake, तो that will be called as a unilateral mistake. और बायलैटरल मिस्टेक का मीनिंग क्या है कि जो दोनों पार्टीज है, बोथ ऑफ देम आर अंडर द मिस्टेक, तो दैट इज कॉल्ड एज अ बायलैटरल मिस्टेक. मिस्टेक ऑफ लॉ इज एज रिगार्ड्स टू मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ. तो मिस्टेक इनिशियली डिवाइडेड इन टू टाइप. वन इज अ मिस्टेक ऑफ लॉ, सॉरी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ. मिस्टेक ऑफ फैक्ट हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू unilateral mistake and a bilateral mistake, and mistake of law is also further divided into mistake of Indian law, that is a law mistake as regards to the law of the country in which you are living, law of land, and second one is a mistake as regards to the foreign law. Now what it says, unilateral mistake has been defined as when one party make a mistake, one party to a contract who makes a mistake, that is called as a unilateral mistake. And when both the party make a mistake, both the parties a part of the contract make a mistake
then that particular mistake will be called as a bilateral mistake. अगर दो पार्टीज में से जो कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट है, दैट इज एन सेलर एंड अ बायर, ऑफरर एंड ऑफरी, उसमें से अगर एक पर्टिकुलर पार्टी मेक अ मिस्टेक तो उस मिस्टेक को आप बोलोगे यूनिलैटरल मिस्टेक। और अगर दोनों भी पार्टीज, बायर एंड अ सेलर, बोथ ऑफ देम आर अंडर द मिस्टेक, तो देन इट विल बी कॉल्ड एज अ बायलैटरल मिस्टेक. These are a division of mistake of fact. What it further says, in the case of a unilateral mistake, contract may be either valid or contract may be either voidable. Contract may be either valid or contract may be either voidable. We'll just try to understand कि अगर दो पार्टीज में से एक पार्टी का मिस्टेक होता है तो आउटकम किस तरीके से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का रहेगा. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. नाउ जस्ट देयर इज अ यूनिलैटरल मिस्टेक, मिस्टेक ऑफ फैक्ट. मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यूनिलैटरल मिस्टेक यानी एक पार्टी, दो पार्टीज में से एक पार्टी अगर मिस्टेक कर रहा है एंड दैट मिस्टेक इज एज रिगार्ड्स टू द फैक्ट, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी कॉल्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. जस्ट सी टू द एग्जांपल ऑफ ए गोल्डस्मिथ. फॉर एग्जाम्पल के एक सेलर है हु इज अ गोल्डस्मिथ जो 18 कैरेट ऑफ गोल्ड का माल बेच रहा है और उसमें आप मेरी दुकान पे कुछ माल परचेस करने आए. आई एम अ गोल्डस्मिथ, आई एम सेलिंग 18 कैरेट ऑफ गोल्ड और आप मेरी दुकान पे यू हैव कम फॉर परचेजिंग सर्टेन गुड्स और आपने मेरे से गुड्स परचेज किया. आई हैव चार्ज यू फॉर 18 कैरेट गोल्ड, लेकिन आपने मेरे से माल परचेज किया और आपके माइंड में ये थिंकिंग चल रहा है कि ये पर्टिकुलर गोल्ड 24 कैरेट का है. हाउएवर यू हैव नॉट मेड एनी अटेम्प्ट टू क्लियर आउट योर डाउट्स. आपने आपके डाउट्स क्लियर मुझसे नहीं करवाए और ये सोच के मेरे से माल लेके गया कि 24 कैरेट का गोल्ड आपने परचेज किया है जबकि मैं 18 कैरेट का माल बेच रहा हूं. तो यहां पे हुआ, इट इज कॉल्ड एज अ यूनिलैटरल मिस्टेक. अब इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को आप किस नजरिए से और किस तरीके से देखेंगे. आप मेरे यहां से माल लेके गए, आपने क्या सोचा वो आपका कंसर्न है, मेरा कोई लेना देना नहीं है. घर जाके आपने माल परचेज किया, आपने अपने वाइफ को वो पर्टिकुलर गुड्स बताए जो आपने उसके लिए लेके गया. आपके वाइफ ने आपको बोला कि ये 24 कैरेट नहीं, ये 18 कैरेट का है. So whether this particular transaction will be called as a fraudulent or misrepresentation, answer is no, because you yourself had a mistake, made a mistake. So this mistake is called as a unilateral mistake. Now just think about that कि आपने वो particular goods, for example आपने आपके वाइफ के लिए एक हार लेके गए और आपने आपके वाइफ को बताया कि ये एनिवर्सरी गिफ्ट है जो मैंने 24 कैरेट गोल्ड का आपके लिए लेके आया हूँ. आपके वाइफ ने बोला यू इडियट, this is not of 24 carat but it is of 18 carat. Now आपने वो गुड्स मेरे पास वापस लेके आया और आपने मुझे बोला कि आपको ये माल वापस लेना पड़ेगा क्योंकि आपने मेरे साथ यानी मैंने आपके साथ फ्रॉड किया है. तो whether that will stand good, answer is no, क्योंकि मैंने आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं किया है, मैंने आपके साथ कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं किया है. मैं 18 कैरेट गोल्ड का माल बेच रहा हूं और वही रेट मैंने चार्ज किया है जो 18 कैरेट का है. आई नेवर टोल्ड यू दैट कि इट इज ऑफ 24 कैरेट. को वेदर यू कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, क्या मैं आपसे वो गुड्स वापस लूंगा? आंसर इज नो. आई एम नॉट गोइंग टू टेक बैक द गुड्स बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड. आई हैव नॉट चीटेड यू. यहां पे मिस्टेक आपका था, आपने आपके खुद जजमेंट से वो गुड्स लेके गए, तो यू कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट. तो दिस इज कॉल्ड एज अ यूनिलैटरल मिस्टेक, मिस्टेक ऑफ फैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड. जस्ट रिफर टू वन मोर एग्जांपल कि आपका एक आपने एक नवा घर बनाया और उस घर में आपका एक लिविंग रूम जो है वो 400 स्क्वायर फीट का है. यू वेंट टू अ शॉपकीपर, आपको आपके वो लिविंग रूम में एक एयर कंडीशन लगाना है, एसी लगाना है. आपने बिना उस शॉपकीपर से डिस्कस किए कि 400 स्क्वायर फुट के रूम के अंदर कितने टन का एसी लगेगा, आपने उससे कुछ भी जजमेंट नहीं लिया, आपने उसका शॉपकीपर का कोई भी गाइडलाइन नहीं लिया और आपने उसके डायरेक्ट जाके बोला कि मुझे मेरे हॉल के अंदर 1 टन का एसी लगाना है.
उस शॉपकीपर ने आपको वो एयर कंडीशन इंस्टॉल करके दे दिया, उसने कोई भी आपको गाइडेंस नहीं दिया, आपने उसका कोई भी गाइडेंस पूछा नहीं। तो हियर आपने 1 टन का एसी आपके 400 स्क्वायर फीट हॉल के अंदर लगा लिया, और उसके बाद जब आप देख रहे हो, अब एसी को चालू कर रहे हो, तो वो आपका रूम जो है वो चिल नहीं हो रहा है, ठंडा नहीं हो रहा है। तो क्या इस केस में आप उस शॉपकीपर को रिस्पॉन्सिबल लेंगे? आंसर इज नो, बिकॉज आपने उसका जजमेंट ही नहीं लिया है, आपने आपके खुद एक्सपर्टाइज से, आपके जजमेंट से वो इंस्टॉल किया है। तो हियर यू कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड इन दिस केस। हाउएवर, अगर आप उसका जजमेंट लेते थे, अगर आप उस शॉपकीपर से पूछते थे कि मेरा 400 स्क्वायर फीट का एक रूम है, लिविंग हॉल है, और उसके अंदर मुझे एसी फिट करना है जो वो बराबर हर कोने के अंदर वो अपना एसी ठंडा करे, तो इस केस में उस शॉपकीपर ने आपको बराबर गाइडेंस देना चाहिए। अगर वो नहीं देता और वो शॉपकीपर 1 टन का एसी आपके रूम में फिट कर देता है ये सोच के कि मेरा ये 1 टन का माल बिक नहीं रहा है तो मैं इसको पिना दूं, इसको दे दूं, तो उस केस में यू कैन कॉल इट देयर इज अ फ्रॉड एंड कॉन्ट्रैक्ट इज voidable in this particular case. You cannot call that unilateral mistake. The contract will be voidable. However, you depend on your own judgment, you depend on your own skill, and you purchase certain article which come out to be of no use for you, then you can help yourself responsible and not the shopkeeper, and the contract will be valid. You cannot avoid the contract. Now second one is unilateral mistake. Contract is voidable when if induced by fraud or misrepresentation. If induced by fraud or misrepresentation यानी आपको सामने वाले पार्टी ने मिस्टेक करने लगाया, by what mean? By manner of fraud and misrepresentation. जैसे कि इस एयर कंडीशन के एग्जाम्पल में आपको उस शॉपकीपर ने ही बोला कि आप 1 टन का एसी लगा लो, बिकॉज उसका माल नहीं बिक रहा है, तो उसने आपको बोला कि 1 टन का एसी लगा लो, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर 400 स्क्वायर फीट ऑफ रूम। तो इन दिस केस दैट शॉपकीपर यानी माई सेल्फ, मैंने आपको इंड्यूस किया है टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो here it can be called as a fraud and contract will be voidable at your end. You are an aggrieved party, you can avoid the contract. So this is how you have to understand that when the contract will be valid, when you have made a mistake और उस mistake you have made an error और वो error आपने खुद commit किया है, ना कि आपको commit करने लगाया है, तो इस केस के अंदर contract will be valid. लेकिन अगर आपको वो एरर किसी ने कमिट करने लगाया, जैसे कि यहाँ पे शॉपकीपर ने, मैंने आपको वो एरर कमिट करने लगाया एंड माय ऑब्जेक्टिव इज टू डिसीव एंड आई एम इंड्यूसिंग यू टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में द कॉन्ट्रैक्ट विल बी voidable. एंड थर्ड केस इज कॉन्ट्रैक्ट इज void. Contract will be void in the unilateral mistake. What is that? Unilateral mistake as to the nature of the contract, unilateral mistake as to the identity of the person. नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बोला गया है कि अगर वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से आपको लेना कुछ और था, आपने कोई वो सब्जेक्ट मैटर का वो सब्जेक्ट मैटर को मिसअंडरस्टैंड कर लिया और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हो गए, तो इन दैट केस द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड. सेकेंड वन इज आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन. वी हैव ऑलरेडी रिफर वन ऑफ द केस लॉ लिंडसे वर्सेस सिंडी. उसके अंदर माल किसी और को देना चाहता था, किसी और को दे दिया. देयर वाज अ मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन. आइडेंटिटी एक्स से कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड करना है, बाय मिस्टेक वाई से कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड हो गया बाय मिस्टेक, दैट इज अ मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन. तो इन दैट circumstances the contract will be void. So here unilateral mistake about the nature of the contract. नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में वहां पे बोला गया है कि अगर सब्जेक्ट मैटर से, नेचर से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड हुआ है, जैसे कि अगर कोई आप किसी और प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो और मैं किसी और प्रोडक्ट के बारे में समझ रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड एज अ मिस्टेक एज टू द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो वो नेचर के मिस्टेक के अंदर, देन दो इट इज अ यूनिलैटरल मिस्टेक बट स्टिल द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड. आप मारुति, आपके पास यू हैव अ मारुति डिजायर, वो जो आप बेचना चाहते हो,
और मैं उसको एक हुंडई का कार समझ रहा हूँ एंड मेरे दिमाग में ऐसा है कि आपके पास हुंडई का कार है, तो देयर इज अ नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे वो मिस्टेक है। तो इन दैट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो वहां पे देयर इज अ मिस्टेक, तो उस मिस्टेक के अंदर द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। सिमिलरली आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन से मिस्टेक है कि आप किसी और को दे रहे हो ये समझ के वो कोई और है, एक्स, मैं आपके साथ मिस्टर एक्स समझ के कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा हूं लेकिन आप वाई हो, तो देन देयर इज कॉल्ड एज अ मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केस लॉ वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, दैट इज सिंडी वर्सेस लिंडसे। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिलैटरल मिस्टेक। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में फर्स्ट पार्ट इज अ यूनिलैटरल मिस्टेक। यूनिलैटरल मिस्टेक के अंदर द कॉन्ट्रैक्ट विल बी आइदर वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट विल बी आइदर वॉइडेबल और कॉन्ट्रैक्ट विल बी आइदर वॉइड। तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड कब होगा? जब अगर आपने बिना सोचे समझे आपने खुद एरर किया है, बराबर, उसमें सामने वाले का कोई दोष नहीं है, तो उस केस के अंदर द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। हावेवर आपको कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टेक करने लगाया सामने वाले पार्टी ने विथ एन इंटेंशन टू डिसीव, तो देन इट विल बी कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। और थर्ड केस, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इन द केस ऑफ यूनिलैटरल मिस्टेक इन टू सर्कमस्टेंसेज, व्हेन देयर इज अ मिस्टेक एज रिगार्ड्स टू द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और second one, mistake as regards to the identity of the person. Though it is a unilateral mistake, but in this case the contract will be void. Then there is a bilateral mistake. Bilateral mistake में you can see we are covering this bilateral mistake, that is also a mistake of fact. Bilateral mistake में mistake जहां पे दोनों parties has made a mistake, तो दैट इज कॉल्ड एज अ बायलैटरल मिस्टेक। अब बायलैटरल मिस्टेक के आउटकम्स क्या होंगे? ये दो आउटकम है बायलैटरल मिस्टेक के, मिस्टेक एज टू द सब्जेक्ट मैटर, मिस्टेक एज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। मिस्टेक एज टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी दोनों पार्टीज का मिस्टेक है, दैट मिस्टेक कैन बी एज रिगार्ड्स टू, यू कैन सी क्वालिटी, एज रिगार्ड्स टू एग्जिस्टेंस, as regards to title, as regards to price, as regards to quantity, as regards to identity. Subject matter of the contract का there is a mistake. आप mistake कर रहे हो, आप दोनों पार्टीज कुछ और समझ रहे हो और कुछ और समझ के कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एज अ मिस्टेक एज टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्वालिटी में मिस्टेक है, मैं बोल रहा हूं कुछ और, आप समझ कुछ और रहे हो। मिस्टेक एज रिगार्ड्स टू टाइटल है, मिस्टेक एज रिगार्ड्स टू एग्जिस्टेंस है कि माल एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है लेकिन सेलर को पता नहीं है, ना ही बायर को पता है। जैसे कि इंग्लैंड से माल निकला, शिप से माल आ रहा है और शिप डूब गया, लेकिन सेलर को यह बात पता ही नहीं है, ऑब्वियसली बायर को तो पता ही नहीं होंगी, एंड स्टिल वी आर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ गुड्स ही नहीं है, गुड्स का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, बट स्टिल वी आर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को यू कैन कॉल इट एज कॉन्ट्रैक्ट अंडर बायलैटरल मिस्टेक। तो बायलैटरल मिस्टेक दोनों पार्टीज का मिस्टेक है और बोथ द पार्टीज आर एंटरिंग इनटू एनी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। नाउ दे हैव ऑलरेडी गिवन कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। तो इन द केस ऑफ बायलैटरल मिस्टेक, mistake as regards to subject matter, contract will be void. Mistake, second part of that is this one. First part is mistake as to the subject matter. Second part is mistake as to the possibility of performance. Now both the parties are under the mistake as regards to possibility of performance. That possibility can be legal, that can be physical. Legal possibility, that means legally आप वो काम कर सकते हो। लीगली इम्पॉसिबिलिटी क्या, इसका मीनिंग क्या है कि आपको लॉ ने बोला है कि ये काम नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ लिकर, बट while entering into the contract for the sale of liquor was allowed in the state, for example state of Maharashtra, but after entering into the contract the sale of liquor has been banned. So here now it has become impossible for the seller to supply the liquor to the buyer, because here it has been made impossible by law, legal impossibility. तो legal impossibility हो गई,
तो नाउ बायर कैन नॉट आस्क द सेलर के फिर भी आप लीकर सप्लाई करो, आई कैन नॉट डू दैट बिकॉज बाय लॉ इट हैज बिकम इलीगल। तो मैं आपको लीकर सप्लाई नहीं कर सकता हूं क्योंकि मुझे लॉ ने मना किया है। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट विल नाइदर बी वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट विल नाइदर बी वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट हियर विल बिकम वॉइड। सेकेंड वन इज फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी। जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो गुड्स जो मैं आपको सप्लाई करना चाहता था वो डूब गए, वो इंग्लैंड से इंडिया आ रहे थे बाय शिप और शिप डूब गया, तो नाउ इट इज बिकम इम्पॉसिबल, आई कैन नॉट, यू कैन नॉट हेल्प मी रिस्पॉन्सिबल कि आपको वो अब गुड्स देना ही पड़ेगा। मैंने जानबूझ के उस शिप को नहीं डुबाया, शिप डूब गया फॉर सर्टेन रीजन, तो हियर the goods cannot come and I cannot deliver the goods to you unless and until the goods are available in the open market, then that is a different case, I can purchase the goods and deliver to you. However यहाँ पे goods आ रहे, goods डूब गए, still we are entering into the contract, तो यहाँ पे that contract का कोई भी मायना नहीं रहेगा, contract will be voidable. However if I have taken any advance from you, I will have to return that advance. I cannot retain that advance and cannot say that आप contract void हो गया और मैंने हाथ उठा दिया अब मैं पैसा वापस, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर contract void हो गया है तो फिर वहां पे you cannot ask me to carry out the contract because that was a physical impossibility. तो bilateral mistake में क्या बोला है, mistake as to the subject matter और mistake as to the possibility of performance. मिस्टेक एज टू द सब्जेक्ट मैटर यानी जिस ऑब्जेक्ट के लिए, जिस चीज के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो वो चीजें एग्जिस्ट नहीं हो रही है, या वो उस चीज के अंदर देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ ए मिस्टेक फ्रॉम बोथ द साइड। आप बोल कुछ और रहे हैं, मैं समझ कुछ और रहा है, मैं बेच रहा कुछ और हूं, आप समझ कुछ और रहे हो, तो देयर इज अ मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी, मिस्टेक एज टू द क्वांटिटी, मिस्टेक एज टू द क्वालिटी, मिस्टेक एज टू द टाइटल, व्हाटएवर, तो देयर इज अ मिस्टेक फ्रॉम बोथ द साइड, the contract will be called as a mistake, bilateral mistake, contract will be void. Or the contract has become impossible to be performed either physically or either legally. In both these cases the contract will be void contract. So mistake of fact is divided in two types. One is a unilateral mistake of fact and second one is a bilateral mistake of fact. Under unilateral mistake of fact you can call contract will be valid अगर एक पार्टी का मिस्टेक है एंड ही हैज नॉट कंसल्टेड द अदर पार्टी, देयर इज अ मिस्टेक ऑफ सिंगल पार्टी। अब सिंगल पार्टी का मिस्टेक है, जैसा गोल्डस्मिथ का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, उस केस में यू हैव सीन दैट के एक बायर मेरे पास आ रहा है और वो 18 कैरेट का गोल्ड मेरे से 24 कैरेट का समझ के ले रहा है, तो यहाँ पे यूनिलैटरल मिस्टेक है। अब इस केस में एक ट्विस्ट है और जो याद रखना है आपको ये वो है कि अगर सेलर को ये समझ में आ भी गया कि बायर का मिस्टेक है, लेकिन बायर ने वो उसका डाउट सेलर के साथ क्लियर नहीं किया है, तो सेलर का ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है कि वो बायर के साथ वो डाउट क्लियर करवाए, ही विल कीप हिमसेल्फ साइलेंट, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर बायर डिस्कस करता है तो देन ऑब्वियसली सेलर को वो उसका डाउट क्लियर करना पड़ेगा। तो in the case of unilateral mistake, we have seen the contract is valid or contract is voidable where one party has induced the other party to enter in the contract by way of fraud or misrepresentation. Contract will be voidable. Third case is contract is void. Contract will be void in two cases where there is a contract a mistake as regard to the nature of the contract or mistake as regards to the identity of the person. In that we have covered an important case law, Lindsay versus Cindy. Then there is a bilateral mistake. Bilateral mistake में अपन ने देखा mistake as regard to the subject matter, that is an mistake as regards to identity, title, quality, existence, price, quantity, that is called as a mistake. Bilateral mistake as regards to the subject matter, contract will be void. Or mistake as regards to the possibility of performance, physical impossibility and legal impossibility, in both the cases the contract is void. तो unilateral mistake में the contract may be valid, voidable, void. Bilateral mistake में the contract is void. अब second part पे आते हैं, mistake of law. Mistake of law में बोला है mistake as regards to Indian law and mistake as regards to foreign law. Mistake as regards to Indian law is similar to mistake as regards to fact. तो इसमें बोला गया है
कि अगर यू आर मेकिंग अ मिस्टेक एज रिगार्ड टू इंडियन लॉ, यू कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन नॉट से दैट कि मुझे पता नहीं था। जैसे कि अगर मैंने किसी का मर्डर कर दिया और मैं बोलता हूँ कि यार मुझे पता नहीं था ये मर्डर की सजा होती है, अगर मुझे पता रहता तो मैं नहीं करता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। यू कैन नॉट डू दैट, बिकॉज जिस कंट्री में आप रहते हो उस कंट्री का लॉ आपको पता होना चाहिए। यू कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली it has been said that contract with the minor is void, obviously. However, in the case of contract with the minor, if major has incurred any liability, वो उसको पूरा करना पड़ेगा। वो बोल नहीं सकता ये कि जैसे कि we have seen that कि अगर माइनर बेनिफिशियरी है और मेजर का कुछ उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ लाइबिलिटी इनकर्ड होता है तो वो लाइबिलिटी उसको पूरा करना पड़ेगा। ही कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट सेइंग दैट देयर इज अ मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, मिस्टेक हो गया था एंड आई वांट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि माइनर ने मेजर को कुछ 1 लाख रुपए दिया और मेजर ने उसको 1 लाख रुपीज का चेक दिया डेटेड 31 जुलाई। नाउ इन दिस केस द मेजर हैज टू ऑनर दैट पर्टिकुलर चेक। लेकिन वाइसे वर्सा अगर केस है कि माइनर ने मेजर को कोई चेक दिया है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड हुआ है और वो माइनर उस चेक को बाउंस कर देता है तो उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती बिकॉज ही इज अ माइनर। लेकिन मेजर ने उसको चेक दिया और मेजर अगर बाउंस कर देता है तो माइनर कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन फोर्स हिम टू पे द मनी। हियर द मेजर कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। तो इन दैट केस यू कैन कॉल इट एज अगर देयर इज अ मिस्टेक एज रिगार्ड टू इंडियन लॉ, कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड। You have to fulfill the contract, you have to enforce the contract। तो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो अगर मिस्टेक एज रिगार्ड टू इंडियन लॉ है। एक सिंपल और एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप रेड सिग्नल पे आप आपकी व्हीकल क्रॉस करके जाते हो तो आपको वो हवलदार रोकता है, पांडु रोकता है और आपको बोलता है कि ये चलन कटेगा। तो आप उसको ये नहीं बोलते हो यार मैं तो ये देश में रहता हूँ और मुझे पता नहीं था, हमारे देश में तो ग्रीन पे रुकता है और रेड पे गाड़ी चलता है, तो मैं यहाँ पे आया हूँ और मुझे पता नहीं है, आई हैव रिसेंटली केम टू इंडिया और मुझे ये पता नहीं है तो आप मुझे माफ कर दो। यू कैन नॉट डू दैट, आपको चालान पे करना पड़ेगा। तो इंडियन लॉ का अगर मिस्टेक है, कोई भी इंडियन लॉ का, तो यू कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट आपके अगेंस्ट अगर है तो आपको वो लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी। इन द केस ऑफ मिस्टेक एज रिगार्ड टू इंडियन लॉ, द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड। हाउएवर इफ देयर इज अ मिस्टेक एज रिगार्ड्स टू फॉरेन लॉ, तो यू कैन ऑलवेज से दैट के वो फॉरेन लॉ से रिलेटेड मिस्टेक है तो ऑब्वियसली इंडियन कोर्ट के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं हो सकता है, वो इंडियन कोर्ट में स्टैंड ही नहीं होगा। बिकॉज जनरली इट इज सेड दैट कि यू शुड, आपको ये जरूरी नहीं है कि फॉरेन कंट्री के लॉ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। यू जनरली डोंट हैव। सिटिंग इन इंडिया, ऑब्वियसली आई डोंट हैव अ नॉलेज अबाउट व्हाट इज अ लॉ प्रिवेलिंग इन द वेस्टर्न कंट्रीज सच एज यूनाइटेड स्टेट और लॉ प्रिवेलिंग इन द यूरोप एंड ऑल दोज कंट्री और लॉ प्रिवेलिंग इन द मिडल ईस्ट। यहाँ पे बैठ के मुझे वो पता नहीं रहेगा। तो यहाँ पे बैठ के अगर फॉरेन लॉ से रिलेटेड अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता हूँ और वो पर्टिकुलर लॉ में मुझे उसका प्रेडिक्टेबिलिटी या फिर उसका जो आउटकम है या फिर उसका कोई प्रेडिक्शन या फिर कोई जजमेंट मुझे निकालना है और वो जजमेंट निकालने में मुझसे अगर कोई गलती हो गई और मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट उसमें तैयार कर लेता हूँ और बाद में पता चलता है यार ये तो गलती हो गई और फिर मैं इंडियन कोर्ट के अंदर जाता हूं तो इंडियन कोर्ट उस पर्टिकुलर केस को एंटरटेन करेगा नहीं। तो यहाँ पे जजमेंट ये निकलता है कि अगर इफ देयर इज अ मिस्टेक एज रिगार्ड टू इंडियन लॉ, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। हाउएवर इफ देयर इज अ मिस्टेक एज रिगार्ड्स टू फॉरेन लॉ, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। तो यहाँ पे मिस्टेक का आउटकम क्या है कि मिस्टेक इज मिस्टेक एज रिगार्ड्स टू फैक्ट एंड मिस्टेक एज रिगार्ड्स टू लॉ। Mistake as regards to fact में we have seen that there is a unilateral mistake or there is a bilateral mistake. If there is a unilateral mistake, the contract will either be valid, either will be voidable or either will be void. However, if there is a bilateral mistake के अंदर contract is always void. Second one is a mistake as regards to law. Mistake as regards to law में mistake as to the Indian law, mistake as to the foreign law.
If there is a mistake as regards to Indian law, contract is valid, contract cannot be avoided. And if there is a mistake as regards to foreign law, the contract is void. So, hope you have understood this topic as regards to mistake. तो 5 चीजें फ्री कंसेंट में याद रखना है. पहला है कोएर्जन, कॉन्ट्रैक्ट इज voidable. Second one is undue influence, जहां पे we have seen that के one party dominate the will of another for the purpose of obtaining an unfair advantage. Again the contract is voidable. Third case is misrepresentation, that is innocent error. आपने गलती की, सामने वाला आपको कुछ, आप कोई चीज सेल कर रहे हो और आपसे गलती से कोई दूसरी चीज सेल हो गई या गलत चीज सेल हो गई, तो दैट इज कॉल्ड एज अ मिसरिप्रेजेंटेशन, वेयर योर इंटेंशन इज नॉट टू डिसीव द अदर पार्टी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इट इज कॉल्ड एज अ मिसरिप्रेजेंटेशन. अगेन द कॉन्ट्रैक्ट इज voidable. Fourth case is fraud, where there is an intentional error. आपने जानबूझ के गलती की with the objective of deceiving the other party. Again the contract is voidable, but in this case the aggrieved party can claim the damages, compensation. Last case is mistake. Mistake में mistake of fact, mistake of law. Mistake of fact में unilateral mistake, bilateral mistake. Unilateral mistake में contract may be either valid, voidable, void, or bilateral mistake, mistake of fact, contract is void. Mistake of law में mistake of Indian law, contract is valid. Mistake of foreign law, contract is void. Hope you have understood this unit. However, if you have again any doubt, please ping me. I will answer all your queries. With this particular unit, I am also going to give today all the question and answer, long, short questions and case studies and difference. Hope you have enjoyed the lecture. Bye everyone.